Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Hello students, good morning. In previous lecture, we have studied chapter 5 and in that we have studied lithosphere, which covered 29% of our Earth's surface. In that lithosphere, you have studied 7 continents and their location. Did you enjoy it? I am sure you liked it. And if you will revise twice and thrice, then you will understand more. Okay. So now be ready to learn the second sphere, that is hydrosphere. Today we will learn something about hydrosphere. Hydrosphere. Hydrosphere means it is a form of earth which is made up of water bodies. These water bodies are in different form and cover 71% of Earth's surface. Now students, from this diagram you will understand more about the forms of water. Okay. So see this diagram. You understand this 71% as a 100%. Okay. And now out of that 100%, 97% is saline water, 2% is ice cap and glaciers, and only 1% is found in river, lakes and groundwater. In this way, we can say that only 1% of water on the earth is usable. So be careful about water. We should not waste the water. We should save the water. So now students, we will see about the forms of water. First is ocean. Ocean means a large water mass covering maximum area of water surface on the earth. Okay, means ये पानी ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन को घेरता है, उसको हम कहते हैं ओशन. There are 5 oceans. They are Pacific Ocean, Atlantic Ocean, Indian Ocean, Arctic Ocean and Antarctic Ocean. These oceans are very wide and deep. वो बहुत ही बड़े बड़े बहुत गहरे भी होते हैं. Now first ocean, Pacific Ocean. It is the largest and deepest ocean. ये सबसे गहरा और सबसे बड़ा है. Almost in circular in shape. वो गोलाकार में है क्योंकि ये ओशन हमें ईस्ट की तरफ भी पाया जाता है और वेस्ट की तरफ भी पाया जाता है क्योंकि हमारे अर्थ का शेप गोल है. कवरिंग 1/3 ऑफ द प्लैनेट सरफेस. ये हमारी प्लैनेट की जितनी सरफेस है उसका तीसरा भाग है, उसके ऊपर इसका पानी घिरा हुआ है. Manifold mountain ranges with numerous volcano around it known as ring of fire. यहाँ पे इस समुंदर में बहुत फोल्ड माउंटेन और वॉल्केनोस भी हैं और ये वॉल्केनोस से घिरा हुआ है, इसलिए इसको रिंग ऑफ फायर भी कहते हैं. फोल्ड माउंटेन यानी क्या? फोल्ड माउंटेन यानी कि जो ओशनिक प्लेट्स होती है उसके अंदर जब प्रेशर आता है और वो प्रेशर एक कॉर्नर से लेकर मिडल सेंटर तक जब जाता है और उसमें
प्लेट्स में फोल्ड आने लगते हैं, वो मुड़ने लगती है और इस तरह से फोल्ड माउंटेन बन जाते हैं समुद्र के अंदर भी। ओके, तो ये रिंग ऑफ फायर है इस ओशन का, बहुत ही जो है माना जाता है रिंग ऑफ फायर से ये ओशन। नाउ द सेकेंड इज एटलांटिक ओशन। एटलांटिक ओशन इज इन एस शेप। जो आप देखोगे इस ओशन को तो वो आपको ऊपर से नीचे तक, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ आप जाओगे तो आपको एस शेप में दिखेगा। इट लाइज बिटवीन बोथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका, टूवर्ड्स वेस्ट, एंड यूरोप एंड अफ्रीका टूवर्ड्स ईस्ट। मतलब ईस्ट में अफ्रीका और यूरोप है और वेस्ट में नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका है। Atlantic Ocean connects to the Mediterranean Sea through Gibraltar Strait। एक तरफ अटलांटिक ओशन है, दूसरी तरफ ईस्ट में मेडिटेरियन जो सी है, उन दोनों को जो जोड़ता है पानी उसको हम कहते हैं गिलबर्टर स्ट्रेट। वो हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट, अटलांटिक ओशन का जो डीपेस्ट पॉइंट है वो है 8648 मीटर्स बिलो द सी लेवल। इतना गहरा है ये। इट इज़ एज हाफ एज द पैसिफिक ओशन। ये पैसिफिक ओशन जो है सबसे बड़ा है, उससे जस्ट आधा है। ओके, इन दिस वे इसमें जो एक मिड अटलांटिक रिज है वो भी माउंटेन्स से बनी हुई है पानी के अंदर। मिड अटलांटिक रिज वो आइसलैंड जो नॉर्थ की तरफ है, नॉर्थ पोल की तरफ है आइसलैंड, वहाँ से शुरू होकर एंटार्क्टिका जो साउथ पोल पे जो है ओशन, वहाँ तक ये अटलांटिक ओशन की माउंटेन बने हुए हैं। मतलब इसमें भी हमें माउंटेन्स देखने को मिलते हैं। Third, Indian Ocean is the third ocean and it is in triangular shape. It stretches from Kanyakumari, the southern tip of India, to Antarctica around South Pole। मतलब इंडिया के साउथ टिप है कन्याकुमारी, वहाँ से शुरू होकर जो एंटार्क्टिका है ओशन, पांचवा ओशन, वहाँ तक ये इंडियन ओशन जाता है। एंटार्क्टिका ओशन है वो एकदम साउथ पोल के पास है, मगर इंडियन ओशन वहाँ तक जाता है। ओके, इसका जो है डीपेस्ट पॉइंट है जावा स्ट्रेच, वो है 7725 मीटर गहरा है। तो इस तरह से ये ट्रायंगुलर शेप में है और इंडिया के नीचे है, इसलिए ये इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। नाउ द फोर्थ इज आर्कटिक ओशन। ये सबसे छोटा है। इट इज़ द स्मॉलेस्ट एंड शैलोएस्ट नॉर्दर्न मोस्ट ओशन ऑफ ऑल ओशन, सराउंडेड टू द नॉर्थ पोल, यूरेशिया, ग्रीनलैंड एंड सेवरल आइलैंड्स। ये सबसे छोटा भी है और शैलो मतलब कम डीप है, और ये जो है नॉर्दर्न पोल के पास है। तो नॉर्दर्न पोल के पास यूरोप और एशिया के जो छोटे छोटे आइलैंड्स हैं उसमें है ये ओशन, उसके आसपास है, ग्रीनलैंड के आसपास है, और उसके ग्रीनलैंड के आसपास भी जितने हैं आइलैंड्स उसके पास भी ये घिरा हुआ है। During winter, it freezes completely. In summer, it melts, and iceberg is very dangerous for passing ship. विंटर में ये फ्रीज होता है, मगर जब समर में ये मेल्ट होता है, पिघलता है, तो इसमें आइसबर्ग, बहुत बड़े बड़े आइस पहाड़ के जैसे तैरने लगते हैं। उस समय जब शिप कोई पास होती है तो ये आइसबर्ग से टकराने का हमेशा डर बना रहता है। Now the last ocean is Antarctic Ocean. Antarctic Ocean is the southern ocean merging by Pacific, Atlantic
एंड इंडियन। ये ओशन साउथ पोल पर है और जो इंडियन ओशन का पानी अटलांटिक जो एस शेप में है उसका पानी, और जो है दोनों तरफ से पैसिफिक का पानी आता है वो भी इसमें आता है एंटार्क्टिका में। तो इस तरह से तीनों ओशन का पानी एंटार्क्टिक ओशन में जाता है। इट इज़ द 4th लार्ज ओशन और ये 4th नंबर पे आता है। इट इज़ फ्रीज फॉर मोर देन 10 months ड्यू टू कोल्ड एंड हियर ट्रेड एंड ट्रैवल अक्रॉस इट रिमेन लिमिटेड। बहुत ही कम यहाँ पे है वाटरवेज की तरह ट्रैवलिंग होती है, वाटरवेज यहाँ पे चलता है और उससे बिजनेस होता है वो भी बहुत ही लिमिटेड होता है। तो इस तरह से ये जो है अटलांटिक ओशन है वो ऑलमोस्ट यूज़ नहीं होता है। यहाँ पे ह्यूमन हैबिटेंट्स भी नहीं है, यहाँ पे कोई रहते भी नहीं है, इसलिए ये कॉन्टिनेंट में भी आता है और ओशन में भी आता है। ओके, दूसरी एक दो बातें ये है कि यहाँ पे डिफरेंट ओशंस हैव डिफरेंट सैलिनिटी, यानी कि हर एक ओशन की अपना अपना खारापन होता है, कोई ज़्यादा है खारा तो कोई कम है। इस तरह से जो रेड सी है कहते हैं उसका सबसे ज़्यादा सैलिनिटी है। और टेम्परेचर, अलग अलग ओशन का अलग अलग टेम्परेचर भी होता है। जैसे जैसे हम इक्वेटर से ऊपर की तरफ जाएंगे पोल की तरफ, तो वहाँ के ओशन का जो टेम्परेचर है वो ठंडा होता है, मतलब वो कम होता है, और इक्वेटर के आसपास जो पानी होता है उसका जो ओशन होता है वो थोड़े गर्म होते हैं। तो माइनस में भी जाते हैं, ज़ीरो में भी टेम्परेचर जाता है और ऑलमोस्ट वो 25-30 डिग्री तो रहता ही है। ओके, तो इन दिस वे यू हैव स्टडीड अबाउट ओशंस। Now, student, we will see about sea. A small water mass separated from ocean is called sea. For example, Arabian Sea is a part of Indian Ocean. Mediterranean Sea is a part of Atlantic Ocean. Like this, you can see another sea. They are Red Sea towards the east of Africa, China Sea towards the east of China, Bering Sea towards the Russia, then Caribbean Sea. It is a sea of Northern America. Okay. Now the bay. What is bay? When the water of ocean is separated and is surrounded by nearby landmass is called bay. जब ओशन का ये पानी सेपरेट हो जाता है और वो सी तो बन जाता ही है, मगर वही पानी जब लैंड की तरफ, कॉन्टिनेंट की तरफ भी चला जाता है तो वो बे बन जाता है और वो सी साइड से कवर्ड हो जाता है, इसलिए वो बे कहलाता है। जैसे कि इंडिया के ईस्ट में बे ऑफ बंगाल, यहाँ पे आप देख सकते हो कि 3 तरफ जो है लैंड है। इसी तरह से हडसन बे नॉर्थ अमेरिका की, अटलांटिक ओशन का पानी अमेरिका के तरफ आया और वो 3 तरफ से लैंड से घिर गया, तो वो हडसन बे है। ओके, नाउ द गल्फ, a small tapping water mass formed by the ocean water up to the coast is called gulf. Compared to the bay, a gulf is a much narrow water mass. गल्फ में भी आप देखते हैं कि यही पानी कॉन्टिनेंट की तरफ चला जाता है और वो भी 3 साइड से, 3 तरफ से घिर जाता है, तो वो गल्फ हो जाता है। गल्फ है वो थोड़ी बे की कंपैरिजन में नैरो होती है। ओके, तो आपने गुजरात की गल्फ ऑफ खंबात और गल्फ ऑफ कच्छ तो
स्टैंडर्ड 5th में देखी ही होगी। अब मैं आपको दिखाती हूँ जो है गल्फ ऑफ मैक्सिको, जो अमेरिका की है और मैक्सिको जो जगह है वहाँ पे बनी हुई है। तो ये भी 3 तरफ से घिरी हुई है लैंड से, और पानी है वो लैंड तक पहुँच गया है, गल्फ ऑफ मैक्सिको। इस तरह से गल्फ ऑफ पनामा जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को सेपरेट करता है। ओके, इस तरह से एक जो गल्फ है ऑस्ट्रेलिया की, वाइड गल्फ ऑफ ऑस्ट्रेलिया, उसको हम ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट भी कहते हैं, जो सबसे चौड़ी है। सारी जो गल्फ है उन सब गल्फ में से ये चौड़ी है। इस तरह से आपने गल्फ के बारे में भी देखा। Now student, what is strait? A long narrow belt of ocean water connecting two large water masses is called a strait. मतलब कि दो बड़े बड़े वाटर बॉडीज होती है, उनको जब कोई नैरो बेल्ट से, मतलब वो बहुत ही नैरो जगह होती है, वहाँ से पानी जो जाता है और दो जो वाटर बॉडीज़, बड़े वाटर बॉडीज़ होती है, उनको कनेक्ट करता है, उसको हम कहते हैं स्ट्रेट। तो हम देखेंगे पहली जो है स्ट्रेट, पल्क स्ट्रेट, वो इंडिया के बराबर नीचे है, और वही जो है स्ट्रेट वो अरेबियन सी है, और दूसरी तरफ बे ऑफ बंगाल है, उसको ये जोड़ती है पल्क स्ट्रेट, जो इंडिया के एकदम साउथ में है। दूसरी है गिलबर्ट स्ट्रेट, जो मैंने आपको पहले बताया था कि ये अटलांटिक ओशन का पानी और मेडिटेरियन सी का पानी है, उसको ये जोड़ती है नैरो बेल्ट। ओके, नाउ रिवर्स। व्हाट इज रिवर्स? ए रिवर इज ए फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम हायर एरिया टूवर्ड्स लोअर एरिया। ऊंचाई से जब पानी का फ्लो नीचे की तरफ आता है, उसे हम रिवर कहते हैं, और उसी के अंदर बहुत सारे जो हैं झरने वो मिलते जाते हैं और रिवर बड़ी बड़ी बनती जाती है। तो आपने इंडिया की गंगा, यमुना, नर्मदा के बारे में तो सुना ही होगा। अब जो वर्ल्ड की बड़ी बड़ी रिवर्स है, नॉर्थ अमेरिका की मिसिसिपी रिवर, ओके, देन अमेज़न साउथ अमेरिका की है, वो वाटर क्वांटिटी में सबसे ज़्यादा है सारी वर्ल्ड की रिवर में से। इसी तरह से अफ्रीका की रिवर है रिवर नाइल, वो सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज लेक। व्हाट इज लेक? ए वाटर मास कलेक्ट into smaller or large pit on the earth is called lake. जब नदी का पानी नीचे की तरफ आता है और वो नदी जहाँ जहाँ से जाती है वो अनइवन होती है, ऊंची नीची जगह से आगे बढ़ती जाती है। ऐसे समय में ऊंची नीची ज़मीन में जो बड़े छोटे गड्ढे होते हैं, उसमें पानी जब भर जाता है तो वो लेक बन जाते हैं। ओके, तो वर्ल्ड के जो बड़े बड़े लेक हैं उनको हम देखते हैं रशिया में लेक बाइकल, इसी तरह से अफ्रीका का लेक विक्टोरिया। ओके, और इसी लेक में से नाइल रिवर ही निकलती है, और नॉर्थ अमेरिका का लेक सुपीरियर। ओके, तो इस तरह से वर्ल्ड के बड़े 3 लेक हमने आपको दिखाए। Now, groundwater. What is groundwater? Rainwater collect through holes, crack below the earth's surface. It is called groundwater. जब समुंदर का पानी भी कभी कभी जो है समुंदर में रहते रहते नीचे ज़मीन के अंदर भी उतर जाता है, बारिश का पानी है वो भी जो है
जमीन नदी में बहता तो है ही, मगर वो भी जमीन के अंदर जो कोई क्रैक होते हैं, होल्स होते हैं, उससे जो है उतर जाता है जमीन के अंदर, उसको हम कहते हैं ग्राउंड वाटर। और इसी ग्राउंड वाटर को हम जो है डिग करके, खोद कर वापस निकालते हैं हैंड पंप से या वेल बनाकर। तो इस तरह से ग्राउंड वाटर का भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने अलग अलग फॉर्म्स ऑफ वाटर देखे। नाउ आई विल टेल यू समथिंग importance of hydrosphere. What is the importance of hydrosphere? Hydrosphere is the major source of rain in the water cycle. मतलब कि हाइड्रोस्फीयर जहाँ जहाँ भी पानी है, उस पानी में से एवोपरेशन होता है, फिर यही एवोपरेशन होकर ये वेपर्स ऊपर जाती हैं हाइट पर, और फिर वहाँ पे कंडेंसेशन होता है, ठंडी हो जाती है और वो वापस रेन बनकर ज़मीन में आती है। तो जो वाटर साइकिल है उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रोल हाइड्रोस्फीयर ही करता है। हाइड्रोस्फीयर इज़ ए हैबिटेंट टू मैराइन ऑर्गेनिज्म। समुद्र के जो जीव जंतु है उनके लिए हाइड्रोस्फीयर पानी है वो घर है। हाइड्रोस्फीयर प्रोड्यूस सीवीड, सी फूड, मिनरल्स एंड पेट्रोलियम। तो हाइड्रोस्फीयर में से हमें जो बहुत सारी वनस्पति मिलती है उसको हम फूड की तरह भी यूज़ करते हैं, मिनरल्स भी मिलते हैं, पेट्रोलियम भी मिलता है। हाइड्रोस्फीयर यूज एज वाटरवेज। पानी के थ्रू हम एक जगह से दूसरी जगह भी जा सकते हैं और ये दूसरे वाटरवेज के कंपैरिजन में चीप यानी कि सस्ता भी पड़ता है। In ocean and sea, sediments brought by river are deposit and form sedimentary rocks। और इसी तरह से पानी में समुद्र में, सी में, पानी के साथ साथ जो सेडिमेंट्स यानी कि पत्थर है, रेती है, बराबर वनस्पति है, वो सारा फ्लो होकर, मिनरल्स हैं, फ्लो होकर आता है और डिपॉजिट होता जाता है। और यही डिपॉजिट को हम सेडिमेंट्स कहते हैं। और कई सालों के बाद ये सेडिमेंट्स में से ही सेडिमेंट्री रॉक्स भी बनते हैं और इसी डिपॉजिट्स में से डेल्टास भी फॉर्म होते हैं जो बहुत ही फर्टाइल होते हैं। इस तरह से हमने हाइड्रोस्फीयर का इम्पोर्टेंस भी देखा।